All right, ladies and gentlemen, we've got Mahendra Singh Dhoni. I can't hear you. Dhoni. Dhoni, Dhoni. Suman Singh Rajput, ladies and gentlemen. We've got Mr. Neeraj Pandey also with us. I can't hear you. Show them some love, ladies and gentlemen. The moment you've been waiting for. Can we hear the Dhoni? Team out here. Hello, check. All right. Check. Well, good evening, ladies and. Could we have the lights on, please? Could we have the Audi lights on, please? The Audi lights on, please. The one in charge of the lights. For the photographers, they can't. All right, ladies and gentlemen, good evening and welcome. You know, आप माही को जानते हैं, आप उनकी जर्नी का एक हिस्सा बन चुके हैं. आपके क्या इमोशंस है? What are you going through right now? Can you have the Audi lights, please? इमोशन एक्चुअली इमोशन तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट ये मेरा ड्रीम था, ये मूवी बनाना, और 4 साल के मेहनत के बाद ये मूवी बन गई है. और अब हमारे इसका ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग आज. और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, नीरज भाई का, सुशांत का, विजय जी का, और ऑफ कोर्स बिकॉज माही यदि कन्विंस नहीं होते तो शायद ये मूवी नहीं बन पाती. सो आज इनको बात करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जी 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 सर, जरूर. सर, योर क्या रिएक्शन है जब आपने ट्रेलर देखा? मैं एज ए व्यूअर्स उसको देखा तो मुझे ये था कि ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए भी. मैं अपने आप को अलग करके देखा और सोचा तो जैसे ज़िंदगी में आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, बट आदमी के हाथ में अपना काम करना होता है. जो मैं इससे सीखा और उसी पे चलते रहा. सो उसका बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिला है, और आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग from movie also. We all are expecting and we know it's going to be a super duper. Mr. Vijay Singh, welcome sir, CEO of Fox Star Studios. Sir, as a producer, first of all, such a big responsibility. MS Dhoni, sir, such a big responsibility. Sir, you see it right now, sir, the euphoria. आपने इतनी बड़ी responsibility ली है and the campaign has begun with a bang. 3-city launch. How does it feel? At Foxstar, we are always looking out for very interesting scripts. But let me tell you that in the life of every studio, very rarely comes a story which is not only an entertaining film, but it is the story that represents the soul of India. And this film represents every one of you and represents India. What can be better? So one message you think will go out to the youth of this country through this film? Well, I believe that this film will tell every Indian that if you have a dream and you work hard towards it, you can make it happen. Well That's said, what sir. MS represents. All right, so I'm going to give you this moment, sir. Unveil the trailer. Ladies and gentlemen, we are going to be doing trailer unveiling, but hold on. We've got to give credit to the director of the film, Mr. Neeraj Pandey, sir. Thank you so much for being here. And very importantly, before we unveil the trailer, my very important question. They just want to see the trailer. Let's be very clear about that. So let's start the trailer and we'll do this Q&A later. All right. Let's have a look at the trailer.
I think you can show some more love, man. If you're an Indian, you must have got goosebumps watching that trailer. Come on, guys! I can't see the love. Tony! And you have to give it up to Sushant, man. I think no one could have done that better than Sushant. Sushant! All right. Neeraj sir, my God. Goosebumps galore. I can't tell you that. I cannot tell you that feeling after watching the trailer. I hope you guys liked it. It was by and large meant for an audience, and I hope they like it. So, first biopic on Captain Cool in the country. I hope there's only one. I hope, and there should be only one. The kind of pressure or the kind of thing that you went through while making the film. Like, what was going on through your system? No pressure at all. I mean, it's a fabulous story. It was all in place. He's already lived that life, so it was pretty much easy to just put it on paper and then go ahead. I think Sushant here had a tougher job to do. He had to model himself into this personality next to him, and thankfully he was by default not doing anything at that point of time, and he had the time and the appetite to sort of work hard, train hard, and deliver what you guys saw just on the screen. But so very importantly, what are the things? It says the untold story. So what did you discover? Something that we don't know. We would हमें like you to क्या go नहीं see पता? the film to see the untold story. सर एक ऐसा कुछ आपको पता चला है जो किसी को नहीं पता है. मतलब how do you want? अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको अभी बता दूं. हाँ थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारी जनता. I'm sure you all want to know a small glimpse. Okay, he's not that big a milk lover as you guys think he is. I mean, he's not that. Thank you very much, sir. Sure. Well, the moment. Mahendra Singh Dhoni, ladies and gentlemen! So it's been 24 hours. So first of all, honor, privilege to stand in front of you. I think I am very nervous right now. But so 24 hours, so you've done the city tours and more than 1,500 kilometers. How does it feel with the kind of euphoria that you get everywhere that you go? Well, to start off, sorry to keep you guys waiting. There were. So, sorry for that. The moment he mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So, you guys are not waiting for 24 hours. But yes, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now. And the kind of response what we have got so far is just fantastic. Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, former school of Sushant. And I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, it's very tough. Frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1,500 kilometers. You have flights and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, hats off to all the film stars, who do it on a regular basis. And they actually do it for 15, 20 days before the start of the movie, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side. And we all need to appreciate it, that the amount of effort they put in, leave getting into the character part, acting and everything. It's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful. So आपने reception के बारे में बोला था, दिल्ली जलंधर के बारे में, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई है भाई. Hey Mumbai, you're not doing well, yeah. Come on. Mumbai is a very special place. Hey, one second. Mumbai is a very special place. From the captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, that anxiety of being with the family is there. So we are about to land, and I think it was
It was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, you know what? It seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain that nothing will happen. We'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. We just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road, and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. That's an amazing feeling because that was the first time you saw like a swarm of people, and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was clicking pictures and everything. So that was the 2007. I don't think I need to talk about 2011. But it's just that, we are a bit late for here. So that whole thing of, Mumbai, it actually slipped. And I was more concerned about, being late for the launch. Come on, guys, let's give it oh, come on, that is awesome, man. So, generally, Neeraj sir makes very real films and all of that. And there is a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी life story है इस film के जरिए. आपको कैसे लगता है ये जो अमेलगमेशन हुआ है फिल्म का और आपकी लाइफ का, आप थोड़े से वरिड हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या फीलिंग है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie, Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies, and I like how he puts things on screen. And I think right from the very start, we were clear, we don't want to make a movie which, makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey so that people can, relate to it, because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And, it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways, and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really, pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and, how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present, or that taught me to be in the present, and how being in present really helped me. So a brilliant blend इस मूवी के जरिए क्रिकेट एंड अब बॉलीवुड हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छे और ज़्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? It will be like telling me the inside, I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it. And cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, it's not only cricket. So हमने देखा कि आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप ज़्यादा जैसे कहते हैं आप यू आर नॉट वेरी लाउड, आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you, it's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूँ मैं,
मैं ऐसे बैठा रहूँगा? दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूँगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज़्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. Sir, helicopter shot, sir. सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया. ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट So, बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए. एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से. नहीं, लास्ट मतलब टेंशन मत लो, डोंट विला, सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से. सर, one message to all these fans, all these Mumbaikars who have gathered here, sir. आई थिंक फॉर मी, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज़ वेरी डिफरेंट प्लेस. हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है. आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 7 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया. मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शूटिंग्स वगैरह में. आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है. People are very focused in what they do, and the culture is also how they have moved forward in life. How they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे if you are a celebrity आप बाहर जाके घूम भी सकते हो. लोग आएंगे, they'll ask you for pictures, photographs. अगर आप बोलो नहीं अभी थोड़ा प्लीज छोड़ दो, they're happy. Okay, thank you. They'll move on. So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation. क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है. पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा. सो दैट पेशेंस लेवल नीड्स टू गो अप, बट एट द सेम टाइम everything else remains to needs to be there at the same time. Thank you, sir. Thank you so much. Sushant, the man who's played MS Dhoni. Guys, so, I think let's give it up for Sushant, man. Nobody could have done this better than him. सुशांत, मुझे याद है हम एक बार मिले थे बाहर, हम ऐसी बात कर रहे हैं. आई रिमेंबर टेलिंग यू दैट आई डोंट थिंक एनी, जब आपका फर्स्ट लुक निकला था, आई सेड बॉस नोबडी कुड डू इट लाइक द वे यू हैव डन इट. सो रियल, सो मतलब इतना पैशन, वो पोस्टर में ही इतना पैशन दिख रहा था. आई वांट टू आस्क यू, दिस इज द मदर ऑफ ऑल बायोपिक्स. मतलब कुछ नहीं, मतलब फॉर एवरी इंडियन सीना तान के खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा है बॉस दिस इज इट, लाइक द माइकल जैक्सन मोमेंट, दिस इज इट. I'm telling you how much pressure to get into the skin of the character, and you have done. After this trailer launch, I think, boss, I think जुड़वा ऐसे लग रहे हैं यार. Seriously,
They won. So how much of pressure? I think to start with, it was more excitement than pressure. मैं जैसे एक स्टोरी बताऊंगा 2007 की बात है या 6 की बात है बहुत ही तवज्जो बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से मैं और मेरी फैमिली एमएस तक पहुंच पाए थे और मैंने एक फ़ोटो खींचा था अपनी फैमिली के साथ और he is one person, one of the very few persons who I seriously have very enormous respect for. I look up to him, and so to get an opportunity to know his inside story up close and personal gave me a lot of excitement, not pressure. And very honestly, there are films in your career you do it with full honesty and you end up being a good actor. But there are very, very rare films that you do and you end up being a good human being. And this is one of the. What a line, सुशांत यार क्या बात बोली आपने यार आपने बहुत रिसर्च किया जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था आपका प्रोमो मिल गया हाँ पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे लेकिन एक बार बोलते यार एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में एंड सुशांत में ऐसा क्या हुआ था मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक मतलब क्या पूछा था आपने नहीं मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था मेरी अच्छा अच्छा क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था फिर उसको ना बाएं से पूछता था आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे वैसा लगता है एक आध क्वेश्चन ठीक है जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ सो आई वाज लाइक मुझे ब्रेक चाहिए मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में आऊंगा I think you need to give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, a few selected fans, sir, have got an opportunity. Sushant, कुछ fans हैं यहाँ पर जो आप लोगों से सवाल पूछेंगे एक-एक करके अपना नाम लीजिए and the lucky few are going to get this opportunity right now. So, one second. We've got mics passed out there somewhere. Yeah, we've got somebody. Hold on. It's going to happen. It's going to happen. The media question and answers will happen. Can we have the fans, please? My name is Dhruv Verma. My question is for Dhoni sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है. टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं. दैट्स वाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ. सो आई फील इट टीचेज यू अ लॉट. अगेन इट इज़ अ टीम स्पोर्ट, सो अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, it's I think it has to be taken in a humorous sense. DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. तो it further adds on to some of the other complexities of cricket. Hi MS, over here on your right side, behind the cameras. Can you see me? Mr. India नहीं दिख रहे हैं आप. Yep, no problem. My question can be heard. It's Yeah, okay. yeah. Hi, I'm Sumit. MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket?
have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying. सवाल सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ, सीधा सवाल जो है सवाल पूछो. सर सीधा सवाल ये है कि have you achieved what you wanted to achieve from cricket? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज़ द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Hello. Good evening, sir. My name is Arminda Kapoor, and you are a global icon. And what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ, उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. सो एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी country is the biggest or the most motivating factor for me. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi, sir. Sir, sir, इधर. अरे हटना. Sir, sir, sir. First of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी. हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्ज़ाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट. क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए. मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे
तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। Hello. My Yes. my yes. name is Nishi Jain. Hello, sir. Where, You where live- is she, Jain? Where is she? Okay, okay, yeah. Straight. Hello, sir. I am Nishi Jain. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। Hello. Hello. Good evening, Mahi sir. Good evening, Sushant sir. Here. Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off, लॉन्ग ऑन। long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका था। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। सो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ ख़त्म हो गया। Hello, Mahi. This is Rahul, the play card guy. Mahi, this is not a question. Actually, it is a suggestion. I know some will be some. जरा people माइक will- सर माइक जरा क्लोज रखिए सर, ऐसे। Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज। नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे। हेलो, हाय MS धोनी एंड सुशांत। मेरा क्वेश्चन सुशांत से है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस। और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ। असल मुद्दा ये है या क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। Hi, Namaskar. MS Akhilesh here from TV24. MS जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है
जहाँ पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पॉन देख रहा है और पॉन कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज़ हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का जॉब मिला है। क्रिकेट अगर ख़राब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी यूनिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। All right, that will be the last question. We're going to have a photo op session now with Mahi and Sushant. So, for the media person. Now announce that we will do a Q&A. Not with media. There is going to be a Q&A session with Sushant and Neeraj Pandey right now. So please hang in there. Hello. All right, all right. So we'll have a selfie with the media and the fans right now. Thank you. Check. We have a Q&A session with Sushant and Mr. Neeraj Pandey. So please settle down, media and fans. We've got a Q&A session with Sushant Singh Rajput and Mr. Neeraj Pandey. जी यहाँ बोलें। पहले तो मुबारकबाद, बहुत अच्छा प्रोमो लगा, वेरी टचिंग, इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। सर, सुशांत का चयन करने से पहले आपके जहन में कहीं MS धोनी का भी नाम था इस रोल के लिए? नहीं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना अभी, उनको खेलने देते हैं। उस समय तो वो रिटायर भी नहीं हुए थे टेस्ट से।
And between, if I was having a choice of choosing over MS the cricketer or MS the actor, I would have preferred MS the cricketer. Thank you. सुशांत सुशांत एक सवाल आपसे, ये जो आम से खास बनने का जो सफर है, ये आपका और धोनी का लगभग एक जैसा है, तो इमोशनली आप इस जो कॉमन फैक्टर है स्ट्रगल, उससे आप कितना कनेक्ट हो पाए इस बायोपिक में? देखिए, देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग आपको पहचानने लगें और आपके पास खरीदने की क्षमता आ जाए, तो फिर आप अचीव करते हैं कुछ और फिर ही आप सक्सेसफुल हैं। उसके पहले जो भी होता है, मैं कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। चेक चेक, कैन यू हियर मी? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ये नज़रिया अलग है। जनरली हम यार एक सेकेंड Guys, I think we need a little silence when you're asking a question, so we respect the artist audio. So please, जरा कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है, एक सेकंड। कैन यू हियर मी? Can you fix the audio? आवाज आ रही है अभी? Can you fix the audio? It's fine now. Thank you. Yeah, let's start. Yours or mine? Both, दोनों से आ रहा है ऑडियो? कैन यू हियर मी राय? ठीक है। चलिए, हाँ, सॉरी, सवाल फिर से आप पूछिए। जी, जो आम से खास बनने का सफर है, उसमें एक जो कॉमन फैक्टर है वो है स्ट्रगल। जी। तो इस बायोपिक में आप उससे इमोशनली कितना कनेक्ट हो पाए? मैं उनकी स्टोरी से जो भी चीज़ें हुई हैं इवेंट्स में, वो क्या फील कर रहे थे, मैं वो सबसे बहुत कनेक्टेड था। क्योंकि थैंक्स टू नीरज सर, पूरे वो स्क्रिप्ट में इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ था कि एक बार दो बार जब मैंने सर के साथ में बैठा तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि हर सीन का बॉटम लाइन क्या है और वो क्यों है फिल्म में। तो वो क्लैरिटी तो बहुत थी। और नज़रिया जो है वो मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा अलग है। हम जनरली सोचते हैं कि जब लोग पहचानने लगे या लोग बोले कि यार अब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम कुछ हो, उसके पहले तुमने जितना कुछ किया वो स्ट्रगल है। ऐसा होता नहीं। जब आप काम कर रहे होते और आपको सच में उसमें मज़ा आ रहा होता है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो सबसे अच्छा फेज़ होता है। वो प्रोसेस सबसे अच्छा फेज़ होता है। उसके बाद आपको फेम और मनी मिले तो वो चार चांद लगने वाली बात है, लेकिन आपका पूरा जर्नी वैसा होना चाहिए। क्रिकेट और जो एक्टिंग है, दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कौन सा फैक्टर सर? रिस्क दोनों में रिस्क फैक्टर बहुत, हाँ, सक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो आपको ये चीज कितनी डराती है फ्राइडे के दिन? मैंने अभी 2 हफ्ते पहले एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ 93,000 तरीके से आप रोज मर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आप एक दिन सर्वाइव करते हैं तो आप कितने लकी होते हैं कि आप 93,000 तरीके से नहीं मरते। तो लक तो फिर ये देखा जाए तो जो लक फैक्टर है वो हर चीज़ में होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रिजल्ट को लेके तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हैं काम करते हुए तो फिर लक आपको थोड़ी देर तक रोक सकता है, लेकिन इवेंचुअली आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। सुशांत, अनुज्ञा सामने, आपके सामने यहाँ। अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से। सर, मुझे ये पूछना है कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? आप MS धोनी का किरदार निभा रहे हो, तो एज अ आर्टिस्ट आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होमवर्क करने में? मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कुछ महीने लगे सब कुछ सीखने में। इतना सीखा कि मैंने खुद को हर दिन ऐसा कुछ घंटे होते थे जब मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता था कि मैं कैरेक्टर हूँ। तो इस सोच से हमने शुरू किया और सर ने जिस तरीके से गाइड किया मैं बस चलता गया और फिल्म आपके सामने आप देखेंगे। नीरज जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत कम ऐसा होता है कि आप जनरली जब एक फिल्म बना रहे होते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन करके आते हैं और अपनी आपका एक आपके दिमाग में एक कैरेक्टर स्केच होता है। लेकिन जब आप डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और वो अपना कुछ इनपुट्स देते हैं तो फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन ये पहली फिल्म है मेरी जब मैं इतना एब्सोल्यूट श्योर था कि अगर नीरज सर ओके बोलते हैं तो मुझे ज़रा भी नहीं लगता था कि मैं एक बार मॉनिटर जाके देखूं कि मैंने क्या किया। आई वाज सो श्योर कि इट विल बी एन ओके टेक। Neeraj, to your right, over here. There was a movie called Wednesday, which happened to be a turning point in your directorial career, which brought a lot of accolades in your career as well. So now this movie, Dhoni, what do you
think Dhoni is going to be as a movie in your career? The idea is to give a movie that the audiences like, nothing more, nothing less. I hope it's for an audience, and I hope they love the film. Sushant, was MS satisfied seeing you performing himself, or how was his reaction seeing you? आपके सामने थे आप. What did personally he complimented you? Or how was it? अभी हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था जो ट्रेनिंग वीडियो था, जिसमें मैं उनके जैसा उन जो टिपिकल शॉट्स वो जो पुश करते हैं, जो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, जो विप करते हैं, वो सब खेल रहा था. तो वो देखे और बहुत ही स्माइल करके बोलते यार ये तो एकदम फोटो कॉपी कर दिया है तुम. तो अच्छी बात है. Personal level, did you learn anything? I can't hear you, bro. Sorry. On a personal note, on a personal level, did you learn anything from him? Of course, I've learned, and that's why there were many things before I got this film that I was hugely, immensely inspired by, and there were many things that I wanted to understand vis-a-vis Mahi is concerned, and that's precisely the reason why I did the film. Hi, Gaurav from Midday. This side, onto your right. Gaurav from Midday. I have a couple of questions, but firstly, it's a mind-blowing trailer. It's the grandeur. It's looking really great, really good. First question is that we have seen Mahi getting creatively involved in the whole process of the filmmaking. So we have seen a lot of other players or other cricketers or maybe sports person, getting involved in the marketing and all those aspects also. So to what extent, anyone can answer, Mr. Pandey, Mr. Singh, anyone. So to what extent we will see Mahi getting personally involved in the marketing and the strategy of the film? That's my first question. And second question is, the second question is, we saw, the last scene, Mahi hitting the ball out of the park, the World Cup scene. So there were a lot of news about, it was written that the original footage will be used for the film. But we saw that you guys have recreated that scene. So was there any problem with the BCCI providing the, was there any issues with the BCCI not providing the footage for you guys? Who's this addressed to? Anyone. I mean, you can answer, Mr. Singh or Mr. Pandey, anyone. First, I I would just like to reintroduce, this is Arun Pandey, the producer of the film. That's Vijay Singh, the producer of the film, Foxstar Studios. First of all, thank you very much for encouraging word. And let me tell you one thing. We had full support of all cricketing body. That's why we were able to make this movie. Otherwise, it was not possible at all. So I am really thankful to entire board, every board, not only BCCI, every board. So that's why we were able to make this movie. So, and about creativity, yeah, of course, Neeraj ji and MS and Sushant both spend lots of time together, and everyone were on same page. So definitely because it was his biopic, so his involvement was, of course, was there. And about marketing and promotion, I mean, I'm thankful to him that whatever request we are putting towards him, especially my job become easier because of Neeraj, because he's able to convince him, and he's agreeing for that. So he started understanding. So whatever support is required, he's giving support to us. And Sushant, the question is for you. While during the whole journey for the film, you have been injured, you have been practicing a lot. It was like so if you have to narrate the whole journey in few words or few lines, so what would that be? How would it be? It's slightly a dicey question. About the film, about my journey, what? Basically playing Mahi, you have trained hard, you have been injured while practicing. Of course, but cricket is just one aspect of the film. Through cricket, we are not showing anything. But yes, cricket is one of the one of the things that we are using in order to tell you what the man is, who the man is. So basically, cricket was important because in order to convince the audience that I am MS, so I have to play shots like him. So obviously, there were lots of time that I invested in
playing shots like him. I got injured, obviously, but that's what you do when you try to cultivate a new skill at my age. But yeah, but then worth it. You liked this trailer, and that's what we wanted. Sushant, Abira here from the Quint, here, right here. I want to know, like you talked about trading. You are a fit guy, but when you had to play Dhoni, did you realize that you're not as fit as the cricketers? What did you do? How did you cope? And what was the fitness training like? Well, it happened to me I think in the second or the third day of the training when Kiran Morisa, he was my trainer, and he asked me to wicket keep. And I always thought it's a very easy job. Let me be very honest. I always thought, oh, you just have to catch the ball if you have very good eyesight and your reflexes are good, so you can catch the balls. But let me tell you, in 30-40 seconds, I could not sit in that posture for like 10 seconds. I got backaches, I got cramps on my quads and everything, and it was so difficult. I can't tell you, I broke my finger. I had bruises all over my hand, and it's such a tough job. So yes, now I have immense respect for all the cricketers who play and at this level, and yeah. So obviously. नीरज जी, I got a question for you here. एक पूछना था आपसे कि फिल्म. Yeah, I'll rather take hers once she's been. बोलिए. जी. पहला वाला दोबारा बोलिए. वही आया, इनका ही आया मेरे पास. मतलब इनका ही बायोपिक आया मेरे पास एज अ प्रपोजल, और किसी का नहीं आया. ऑन अ सीरियस नोट, कहानी इनकी जो जर्नी रही है, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की है, बहुत ही इंस्पायरिंग है. आप जानती हैं शायद कि ही वाज बोर्न झारखंड, रांची, इट वाज देन बिहार. फ्रॉम रांची टू be the person to achieve what he's achieved. So it's a very long journey, and I always find these kind of stories very inspirational. तो झुकाव उसी तरफ था. ये आप बताएंगे या ये MS बताएंगे कि मैं कितना ऑनेस्ट रह पाया. MS ने फिल्म देखी है, तो आप जब नेक्स्ट मिले तो उनसे पूछ लीजिए. नीरज जी, मैं पूछ रही थी आपसे. हाँ, तो ऐसा था कि बिफोर व्हेन वी स्टार्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, मी एंड MS हैड अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो मुझे जो भी है सब कुछ बता देंगे, एंड उसके बाद हमारी रिसर्च टीम जो है, एंड वील डू अ स्क्रीन प्ले, एंड देन ही विल सी द स्क्रीन प्ले, ही विल रीड द स्क्रीन प्ले, एंड देन ही विल रिएक्ट ऑन इट एंड सजेस्ट व्हाटएवर नीड्स टू बी डिलीटेड और नीड्स टू बी चेंज. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद जो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे शायद विद द वर्ल्ड बाय एंड लार्ज. ऐसा कुछ निकला नहीं. बस यही जवाब है आपका. थैंक यू. Hi Sushant. Hi Sushant here. There. Just one sec. Please go in order. नीरज जी. We are not leaving. Trust me, we are sitting just for you guys. Please. Tell me. Just want to Tell me. That's not my call, as you would understand. It's not my place to answer on his behalf also. He's an individual who has his own choices. I don't know what the reason is, but you can't ask this question to me because I'm the wrong person. I'm absolutely sure that you should, guys. Yeah. I mean, it should have been informed. I don't know why that has happened. I apologize on that behalf that it should have been communicated to you. Yeah, I'm apologizing you on their behalf. Fantastic. Thank you. नीरज जी. हाँ जी. Hi Sushant. मैंने आपसे कि मतलब धोनी जी की लाइफ है, मतलब काफी ग्लैमरस. क्या बोलेंगे? Sorry.
थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? ओके, धोनी जी की जो लाइफ है काफ़ी ग्लैमरस रही है, उबड़ खाबड़ भी रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि वो डटे रहे कि नहीं इसको नहीं डालना है और आपने कहा नहीं मुझे इस फिल्म में करनी, वो चीज़ें ऐड करनी है, ऐसा कुछ है कोई चीज़ें? नहीं, ऐसा मैंने अभी अभी बताया इनको कि ऐसा कुछ निकला ही नहीं। हमने जो तय किया था आपस में कि वो एक बार सब कुछ बता देंगे और उसके बाद हम लोग 3 घंटे की फिल्म होती है, 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो बेसिस दैट जो स्क्रिप्ट होगी और अगर उनका कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बताएंगे, बट देयर इज नथिंग दैट केम आउट, सो व्हाटएवर ही शेयर्ड basis that the script was made and that script is the film that you're going to see. सुशांत सर, हाय सुशांत, हाय सुशांत, सुशांत मेरा सवाल है आपसे और नीरज दोनों से कि अगर बॉलीवुड का इतिहास देखा जाए तो स्पोर्ट्स की फिल्में हाल ही में चलना शुरू हुई हैं। अगर चकदे का एग्जाम्पल छोड़ दें तो अभी सुल्तान चली है, मैरी कॉम चली है, मिल्खा चली है, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स हैं वो इतने एनकरेजिंग नहीं हैं। जहाँ तक मुझे याद है लगान एक फ़िल्म थी और उसके पहले इकबाल थी श्रेयस तलपड़े की। क्रिकेट पे ज़्यादा फिल्में चलती नहीं और हाल ही का एग्जाम्पल है अजहर का जो नहीं चली। तो क्या जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे और जब आपने ये फिल्म साइन की तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड किसी तरह की आशंका, एप्रीहेंशन था कि क्रिकेट पे मैं फिल्म कर रहा हूँ? क्या कुछ चल रहा था उस दौरान आपके मन में, मैं जानना चाहूँगा। सर मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा था और थिएटर कर रहा था तो मुझे हर शो के 250 रुपये मिलते थे और मैं उसको बहुत दिल लगा के बहुत अच्छे से काम करता था उसमें भी। तो आज भी जब मैं फिल्म्स में काम करता हूँ तो कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचता। जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। नीरज एक्चुअली प्रोड्यूसर से पूछ लीजिए। Neeraj sir, yeah, Priyanka from India Forums. Yeah, please. A lot of controversies have been revolving around Dhoni throughout his tenure. So even light has been focused on, in the film. Are we going to see even that? If yes, then, and if not, then why? I won't know your definition of controversy, but you saw the trailer and we've touched upon certain key elements of his life, certain decisions that he took while he was working, both in his personal and his and in the capacity of a captain. And yes, they are all there in the film. We are. It's not a hagiography. We are not like MS himself said that it was not there. The idea was not to glorify and put a halo around him. The idea was to tell his story as is, and that's what we've tried to do. And I hope we are successful in that. Hello. Sushant, my Hello, question this is to for you. Sushant Singh. Sushant Singh here. I'd like to ask you that what is the best thing about MS Dhoni as a captain of India? What is the best thing? यही कि आप देखिए कि हम सब कितना हर समय यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा तो बहुत गंदा होगा। फिर हम प्लान बी सोचते हैं, प्लान सी सोचते हैं। लेकिन आप जब इस जगह पे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी पास्ट के बारे में, ना तो आपका कोई रिग्रेट होता है, ना तो आप वापस जाना चाहते हैं। आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं और जो सही आपको लगता है वो बार बार करते रहते हैं। ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। सुशांत जी, इस फिल्म में आप गाने वाने गा रहे हैं आप किसी हीरोइन के साथ या नहीं? मैं तो कभी डांसिंग वाले के उदास दिख रहे हो आप। मैं किसी फिल्म में गाना नहीं गाया सर अभी तक। कुछ म्यूजिक के बारे में कहिए नीरज जी। हाँ जी। रोमांस के बारे में कहिए, कुछ सुशांत रोमांस कर रहा है कि नहीं फिल्म में? सुशांत रोमांस कर रहा है, सुशांत रोमांस कर रहा है। सुशांत, एक्सक्यूज मी, सुशांत, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ नहीं झारखंड, ऑन योर राइट, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च झारखंड में नहीं हुआ, बीइंग धोनीज होम टाउन। तो आर यू प्लानिंग पर्सनली वहाँ पे जाके किसी तरह से फिल्म को प्रमोट करोगे किसी लेवल पर? पिछले 1 साल से वहीं पे था, अभी इधर आया हूँ तो थोड़ी देर बाद जाऊँगा उधर। ऑफ कोर्स झारखंड में भी जाएंगे और मैं पटना में पैदा हुआ था तो उधर भी जाएंगे, बड़ा आसपास वाली जगह। पहला किससे गए? थैंक यू। इंजरी तो बॉडी में थी, हार्ट ब्रेक हार्ट में था और माइंड सेट तो सही था, माइंड अलग है। बिल्कुल भी नहीं। Hi Sushant, this is Mayur here from Sinistan. ग्यारह में समाप्त हो रही। Hi Sushant, this is Mayur here from Sinistan.com Center. Sushant, if you can see, I'm waving my hand. Yeah. Obviously, obviously, this one thing to play the great Mahendra Singh Dhoni. I'm sure you've done a good job at that.
but how much have you been able to incorporate the great sense of humor of, the Captain Cool? Great sense of humor of him. Yeah. Well, I got the dialogues and I got the timing correct. So yeah, in the film I've got a great sense of humor. But in your interaction with Dhoni, like, were you able to imbibe that sense of humor? Catch? He was laughing at most of my jokes, so I would assume that yes. Thank you so much. Sushant, hi, Abhishek here, straight. Hi. The trailer looks really amazing and all Thank the you. best for the film. Thank you so much. जो फिल्म जब बन रही थी तब आप काफ़ी न्यूज़ में थे, प्रोफेशनली और पर्सनली भी. अंकिता को लेकर भी आप न्यूज़ में थे एंड कृति को लेकर भी आप न्यूज़ में रहे हैं. कृति ने उस पर बात किया है ऑन द लिंक अप विथ यू. योर कमेंट्स टू इट. उन्होंने बात किया, उस पर कमेंट करना है या जी, कृति ने बात किया था जो आपको आपके साथ जो उनका लिंक अप न्यूज़ आया था. जी जी, वो बहुत हमेशा सच बोलती हैं. उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला. सुशांत, मेरे दो सवाल है आपसे. एक तो आई जस्ट वांट टू नो दैट जो ये हेलीकॉप्टर शॉट जो एक्चुअली उन्होंने बताया रेप्लिका, हाउ मेनी डेज इट टुक फॉर यू टू लर्न दैट शॉट एंड इट वाज रियली वेरी गुड यू प्लेड. और सेकंड है कि आई सॉ योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू वर माही वाज हियर and the body language changed when the Mahi went away. What was it like? Were you nervous that time when Mahi was around? Right now? No, when Mahi was, right now. बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई. Yeah, body language changed because that time नहीं, उस समय मैं बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पे बैठा हुआ था. अभी अरुण सर ने वो चेयर ले लिया है और मेरा चेयर जो chair is same only, sir. Just because of this, otherwise I'm completely the same person. Oh, you were nervous? It's a wobbly chair. So ये जो फिजिटी है ये चेयर की वजह से मैं बिल्कुल काम हूँ अंदर से. Okay, और हेलीकॉप्टर शॉट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वो कुछ पहले कुछ 2-2.5 महीने लगे, क्योंकि मेरा एक जो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे एक रिब में स्टाइल मारने के चक्कर में, तो उसके लिए कुछ 15-20 दिन का गैप हो गया. नहीं तो 2-2.5 महीने में मैंने सीख लिया था. अच्छा, पहले लड़की तो ढूंढूं, उसके बाद शादी करूं. Last question. Last question, guys. Last Hello. question. Hello. Here, I think it's very important to see this film in the perspective that it's been made. ये बहुत unusual film है. They are not. मैं आपको इतना guarantee देता हूँ कि in Bollywood हम सब कहते हैं we must make more strong stories. Now finally we've got a film which I can tell you Bollywood is going to be really proud of it. We're going to be releasing the film very wide in India and across the world. So this is a film that's going to make all of us as Indians very proud. Thank you.
स्टार्ट सर थोड़ा पीछे जाइए अरे पूछो ना क्या रवि रिलीज हो रही है वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी ऑफ द ईयर कैसे फीलिंग है अभी तक तो बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं होप करता हूँ कि कल भी जब सब जाए देखने के लिए तो सबको बहुत अच्छा लगे और आज मैं और माही साथ में देख रहे हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग इट टुगेदर सो या क्या रिएक्शन है धोनी से आपने बात की अभी कल बड़ा दिन है उनके लिए सब नहीं अभी जा रहा हूँ ना मिलने अभी पहली बार हम दोनों साथ में फिल्म देखेंगे तो लेट्स होप कि उनको अच्छा लगे जाओ ना पहले ये ले अभी आई थिंक कल रिलीज होने वाली है तो मुझे कुछ कहने की अब ज़रूरत नहीं है गो वॉच द फिल्म टुमारो वी आर ऑल super excited to know your reactions now. Done, guys. Thank you. Thank you. जाओ पीछे सर यहाँ पे सर मनोज सर यहाँ पे सर एक इंटरव्यू वाइट छोटी एक इंटरव्यू सर एक इंटरव्यू सर एक इंटरव्यू आपका मनोज भैया सर एक इंटरव्यू भैया सर नमस्कार
मुझे दो यार, मुझे दे दो भाई। सारे भाई अब ज़्यादा नहीं हो गया। भारत के महानतम खिलाड़ी धोनी का फिल्म रिलीज होने वाला है, कल बड़ा दिन है, आज आप फिल्म देखने जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड लेकर? अब बहुत अपेक्षाएं हैं और बहुत रोमांचित भी हूँ। देखते हैं क्या है, लेकिन मैं खुश हूँ कि कोई व्यक्ति अपने जीते जी इतना बड़ा लिविंग लेजेंड बन चुका है और पूरा दुनिया में इतनी एडवांस बुकिंग हुई है, तो हम एक्टरों की भी बजी हुई है। तो निश्चित रूप से ये फिल्म एक भारत के खिलाड़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम होगी। तो अभी बहुत रोमांचित हूँ। थैंक यू सो मच। सर मैम स्ट्रेट सामने एकदम आपके। बस सामने सर, सामने देखिए ना सर, सामने आपके सर सर राइट में आपके सर जो भाई बढ़िया। मेरी फिल्म है, बाकी सबसे पूछो कैसा लगे। आप साइड में मैडम के साथ कभी नहीं मिलता। साइड
जय किधर है? मैं वो कर डालना चाहिए ना तेरे को फोटो? हाँ चिप डालना एक मिनट मैं दे दो, फ्री में है ना? एक मिनट मैम, एक मिनट तेलुगु फिल्म से आपने कम बैक किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिर बाद में आप हिंदी जगत में भी आप काफ़ी छा के दिखे, लेकिन आपने बीच में काफ़ी लंबा गैप किया और गैप के बाद आप वापस एक बड़ी फिल्म में आप आ रही हैं, MS धोनी। तो हम जानना चाहेंगे कितनी खास है ये फिल्म आपके लिए और कितनी एक्साइटेड है? ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज़ मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिला है। ही इज़ सच अ लेजेंडरी क्रिकेटर, हमारी कंट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स हैं अभी, और उनकी सिस्टर का रोल प्ले किया है मैंने, सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिला है, इवन दो ये रियल लाइफ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, प्लेइंग जयंती हिज सिस्टर्स रोल। ऑल्सो मुझे नीरज सर के साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। भूमिका, लेकिन आपकी जो डेब्यू हुई थी तेरे नाम से बड़ी फिल्म बड़े स्टार के साथ, और उसके बाद आप कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कैरेक्टर रोल प्ले करना किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी भी आप तेलुगु फिल्म में या रीजनल फिल्म में काम कर रही हैं, वो भी लीड तो एक्ट्रेस के तौर पे। नहीं, मुझे बिल्कुल भी कहीं भी झिझक नहीं है इस बात की। एक थोड़ा सा भी मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि मैं सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ तो कुछ इसके आगे मुझे अच्छे रोल्स नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इनिशियली जब आपको ऑफर किया गया कि आप MS धोनी की पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, मतलब पूरा कंट्री इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी एज एन प्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेस आपको एप्रीहेंशन था कि मुझे ये रोल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? कोई भी फिल्म आप करने से पहले थोड़ा सोचते हैं, कुछ भी काम लेने से पहले। तो व्हेन आई साइन MS धोनी, मैंने एक दिन वक्त लिया था, बट वंस आई वाज व्हेन आई हर्ड द एंटायर रोल एंड स्क्रिप्ट एंड सीन्स जो मुझे सुनाए गए, even though the screen time wasn't so much, but I really thought this role is going to be impactful enough for me to come back. So भूमिका, धोनी इज एक्सिस्टिंग लेजेंड और उनके ऊपर फिल्म बन रही है। कहा जाता है कि अगर एक्सिस्टिंग कोई पर्सनालिटी उन पर बायोपिक बनती है, खासतौर पर उनके इर्द गिर्द के किरदारों के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी डिटेलिंग पर ध्यान देना पड़ता है। आपने कितनी ध्यान दिया? See, मुझे द फैक्ट दैट नीरज सर अपनी फिल्म बनाने से पहले वो पूरी रिसर्च करते हैं। उन्होंने ही इज़ मेट एवरीवन, वो धोनी से, धोनी के पेरेंट्स से, सिस्टर, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स, कोचेस, सबसे मिले। तो उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च पहले की थी ये फिल्म बनाने से पहले। तो जो एक्टर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है कि सेट पे जाओ तो जो डायरेक्टर हैं उनको सब कुछ पता है, सो यू डोंट हैव टू वरी, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न कि अब मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। नीरज सर के साथ काम करना इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। ओके, क्योंकि वो लीडिंग पर्सनालिटी हैं जैसे धोनी की सिस्टर जयंती जी, क्या आप उनसे आप मिली हैं ताकि होता है ना आपकी रोल को जस्टिफाई हो? राइट, नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं नीदर मैं जयंती से मिली हूँ और ना धोनी से मिली हूँ, सो आई एम होपिंग एट सम पॉइंट आई विल मीट। बड़ी बात है क्योंकि अगर आप उनसे नहीं मिली और फिर भी आप रोल कर रही हैं, राइट, तो बिग थिंग। आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में लगभग मतलब 12-13 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप कभी भी ज़्यादा पार्टीज, फंक्शन या कोई इवेंट्स पे नज़र नहीं आती है। आपको क्या इन सब चीज़ से कोई परहेज है, मीडिया से परहेज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक शायद बाय नेचर मैं थोड़ी बाहर कम जाती हूँ और मुझे जल्दी सोने की आदत है। अच्छा। मतलब वक्त पे मैं 9, 9:30, 8 बजे मेरा डिनर हो जाता है, 9:30 बजे तक मैं अपने रूम में होती हूँ। तो कोशिश करती हूँ साल में 1-2 जगह मैं कहीं जाऊँ, बट उतना नहीं जाती। फिल्में आप आजकल क्यों कम कर रही हैं? मैंने साउथ में काफ़ी काम किया है, तो इवन आफ्टर गांधी माय फादर आई कंटिन्यूड। ऐसा कभी नहीं था कि मैंने काम कम किया या रोक दिया, ऐसा नहीं। साल में अगर देखा जाए तो एक बार या फिर 2 साल में एक बार। अभी क्योंकि आई हैव अ बेबी तो उस बेबी होने के बावजूद मैं साल में एक फिल्म कर रही हूँ,
बट बेबी से पहले आई वाज स्टिल डूइंग 2-3 फिल्म्स अ ईयर. सो ऐसा कोई आपने प्लान भी किया है कि मतलब अगर आने वाली फिल्म अगर आपको मिले तो एक पर्टिकुलर जॉनरा से, मतलब हम जानना चाहेंगे किस तरह की सिनेमा से आप आगे आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिल्म करेंगे आप? सी फॉर मी एज एन एक्टर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही टाइप की फिल्म करूँ. इट कैन बी ड्रामा, इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी इमोशनल फिल्म्स, इट कैन बी रोमांटिक फिल्म्स. आई एम ओके. मुझे ऐसा कुछ नहीं है एक फिक्स्ड कि मैं एक ही टाइप की फिल्म करूँगी. बट आई वांट टू डू व्हाट आई थिंक आई विल लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ. अच्छा, आप धोनी से नहीं मिली, जब आप धोनी से मिलेंगी तो क्या लगता है आप भूमिका बनकर मिलेंगी या छंटी बनकर? आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा जब उससे आप मिलेंगी तो? आई थिंक बोथ, बिकॉज आई विल मीट हिम एज भूमिका, बट समवेयर इन माई हार्ट एंड हिज हार्ट ही विल नो कि इन्होंने मेरी बहन का रोल किया और मैं भी जानती हूँ, तो एक वो कनेक्शन रहता है. मतलब धोनी आपने उनकी सिस्टर देख पाएंगे? आई एम होपिंग. भूमिका ये पहली फिल्म नहीं है मतलब किसी स्पोर्ट्स लेजेंड पे, पहले भी आई, मतलब आपको जी मिल्खा सिंह पे आई, फिर आपको मैरी कॉम पे आई. लेकिन जहाँ तक बात है मतलब कोई फिल्म बनती है तो रॉयल्टी जो इशू होता है, अब धोनी बहुत हेवी चार्ज कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, और आपको पता है मिल्खा सिंह ने सिर्फ ₹1 चार्ज किया था. तो बीइंग सच एन इंस्पिरेशनल फिगर इतना हेवी अमाउंट कमर्शियल होना कितना सही है और कितना गलत है? इन बातों पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर इंसान की एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है. तो अगर किसी ने ओनली ₹1 किया है, somebody is charging I don't know how much, 30, 40, 50 lakhs, it doesn't matter. It is a personal choice. Right. So जब कभी मेरे ऊपर बात आएगी तो then I can comment, but right now I can't. और ये भी पूछना चाहूँगा, कभी कभी जो खबरें आती हैं पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से जो कि जिसमें सच्चाई उतनी नहीं होती है, तो उस पे आपको क्या, जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अफेक्ट करता है? पहले करता था, बहुत साल पहले. अब मुझे चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. अब नाउ आई हैव लर्न द लेसन. भूमिका धोनी के बाद आप कौन सी फिल्में करेंगे? इसके बाद क्या होगा? धोनी के बाद आई एम होपिंग टू डू सम गुड फिल्म्स. Okay, any particular name? Nothing. I don't want to say anything right now. लास्टली पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि मतलब इंटरनेशनली काफ़ी ग्लोबल हो रहा है सिनेमा, बहुत सारे एक्ट्रेस बाहर भी काम कर रही हैं, दीपिका और ले लीजिए प्रियंका को. आपका कोई लार्जर देन नाइस एस्पिरेशन है या आर यू सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर गेटिंग? I would like to do a lot more in life than what I'm already doing. So aspirations तो बहुत हैं, but let's see how they get fulfilled over a period of time. Thank you so much. Thank you. आजकल तनाव काफी बढ़ गया है दो देशों के बीच में, जिसके वजह से कला को लेकर भेदभाव किया. Any comments you want to share? देखो, मेरी फिल्म आ रही है कल बहुत साल के बाद. मैंने ऑलरेडी 4 लोगों को इंटरव्यू दे दिया. अभी मेरी बैंड मत बजाइए. आई थिंक आई शुड स्टे आउट ऑफ इट. जस्ट कट इट आउट. थैंक्स. Because the more you comment on it, the more it will become bigger. दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में. थैंक यू. टीवी जगत से आप एड फिल्म की और एड फिल्म करते हुए आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ रही हैं, ये कितना शानदार अनुभव है आपके लिए? बहुत ही शानदार अनुभव है, बिकॉज़ कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूंगी या मॉडल बनूंगी. बहुत शाय थी मैं बचपन से ही, और मेरे लिए अपने को स्क्रीन में देखना भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ यू नो वो एक्सेप्ट करना कि मैं स्क्रीन में कैसे दिख रही हूँ या मैं कैमरे के सामने एक्ट कैसे कर रही हूँ. इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू यू नो एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हूँ. तो आई थिंक मैं जैसी हूँ पर्सनली, उस स्पेस से निकल के कुछ और एक्सप्लोर करना, वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. आमतौर पर देखा जाता है जब फिल्में मिलती है, नॉन फिक्शनल फिल्में मिल जाती है या फिक्शनल फिल्में भी मिलती है. आपको नॉन फिक्शनल मिली है जी, जो कि एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है, काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है. आपके कितना चैलेंजिंग रहा? एक्चुअली इतना चैलेंजिंग नहीं रहा, बिकॉज़ नीरज सर काफ़ी सपोर्टिव थे. पहले से उनके दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट और पूरी कहानी चल रही थी. जब हम शूट करते थे उन्हें पता था कि वो क्या लेने वाले हैं. तो क्योंकि आपका डायरेक्टर इतना श्योर है चीज़ों के बारे में, आप एज एन आर्टिस्ट आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहता है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ हिम मेरी काफ़ी लाइफ ईजी हो गई, मेरी जर्नी ईजी हो गई व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म. सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर, एंड
उन्होंने ही काफ़ी मेरे लिए चीज़ें सिंपल कर दी। फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो रियल लाइफ तो है ही है, साथ में साथ वो अननोन भी है कैरेक्टर। जी। तो मतलब उसके लिए आपने कितनी तैयारियां की, क्या मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह अपनाने की? मेरे लिए एक्चुअली इजी ये रहा कि लड़की दिल्ली से है और मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे वो नॉर्थ इंडियन स्लैंग या वो वाइब लेना मेरे लिए बहुत इजी था। वो एटीट्यूड जो नॉर्थ इंडियंस में होता है, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, आप सॉन्ग देखो वो कलर्स काफ़ी रहते हैं उनके आउटफिट में, तो वो मेरे लिए ईजी रहा। काफ़ी अच्छी कॉस्ट्यूम टीम थी मेरे पास। बाकी चीज़ों के लिए एज आई सेड नीरज सर डायरेक्शन उन्होंने जो दिया मैंने फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे वो स्पेस दिया जहाँ पे मैं खुद के किरदार को भी एक्सप्लोर कर सकूँ, नॉट जस्ट कि वो जो मुझसे कह रहे हैं मैं वो करूँ। तो वो लोग उनके साथ ये है कि वो आपको बताएंगे क्लियरली कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन आपको वो स्पेस भी देंगे कि ठीक है दिस इज़ द वाइब आई एम टेलिंग यू, बट आप अपने को एक्सप्लोर कर लो इसमें। हमने सुना आप धोनी से भी नहीं मिले, आपको ऐसा नहीं लगा कि कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए एक जिस पर बायोपिक बनी उनसे मिलना? आई थिंक मैंने उसको एक किरदार के लिए की तरह लिया, मैंने उसे किसी की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं लिया, बिकॉज अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड की तरह लूँगी तब मुझे मे बी धोनी सर से मिलने का एक ज़रूरत होता। एक किरदार लिया प्रियंका, जो दिल्ली से आई है, कैसी है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे रहती है, हाउ शी बिहेव्स, सो वो सब चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी काम कर लिया था नीरज सर के साथ, तो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में थी, एंड अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करते हो देन नथिंग कैन गो रॉन्ग बिकॉज यू नो द फील ऑफ द होल सराउंडिंग एंड हाउ यू गोना फंक्शन। दिशा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप बरेली से हैं? जी। और बरेली से है, बरेली से प्रियंका भी है जी। और ऑन स्क्रीन आप प्रियंका के कैरेक्टर, सो लकी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रियंका मैम एंड आई थिंक शी इज़ अमेजिंग। मेरे लिए वो बेस्ट है एंड शी रियली इंस्पायर्स मी। मुझे काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने। एक्चुअली मैं इतना फिल्मी नहीं थी, अगर जब से मैंने एक्टिंग करना शुरू किया या जब से मैं फिल्म में आई हूँ तब से मुझे पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट जॉब है, बिकॉज जब हम देखते हैं हमें पता नहीं होता है कि एक्टिंग, हमें लगता है कितना ईजी है, हाँ अच्छे कपड़े पहनो ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट, आपको जब सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद आपको इतने दिनों तक आपको शूट करना है कॉन्स्टेंटली, आपकी लाइफ नहीं होती है, वही आपकी एक लाइफ बन जाती है। तब मैं प्रियंका को देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मतलब हॉलीवुड से बॉलीवुड इतना ट्रैवल करके कितनी सारी चीज़ें कर रही होगी, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड अगर आपकी कैरेक्टर से कोई एक क्वालिटी आपको रियल लाइफ में रिटेन करनी हो तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटी? बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव। शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव गर्ल। फैंटेसी लैंड में नहीं रहती है, खुश है लेकिन ऐसे ओवर द टॉप, मतलब पता है रियलिटी क्या है लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुश है, बहुत पॉजिटिव है, तो आई थिंक पॉजिटिविटी लेना चाहूँगी। जैसा आपकी फिल्म को लोग काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है और जाहिर सी बात है जब आप सिनेमा के पर्दों में दिखाई देंगी आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी, आई होप। हाँ, साथ साथ क्रिटिसिज्म भी झेलना रहेगा जी, वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आप कितनी तैयार हैं? आई थिंक काफ़ी तैयार हो चुकी हूँ। इससे पहले तेलुगु फिल्म करा मैंने, फिर मैंने बेफिक्रा वीडियो किया, सो आई थिंक आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट दिस क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन वाला फेस। इट्स फाइन एक्चुअली, अगर कोई वैलिड पॉइंट है, व्हेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी फॉर अ वैलिड पॉइंट, आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट एंड आई वांट टू लर्न, बिकॉज आप परफेक्ट नहीं हो सकते, नोबडी इज़ परफेक्ट, सो आई थिंक इट्स नाइस अगर कोई मुझे बता रहा है कि ये आप में कमी है या फिर आप ये अच्छा कर सकते हो, तो आई वुड वांट टू टेक दैट पॉइंट। बट जो इनवैलिड रीजंस होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, तात्पर्य नहीं होता है, तो आई थिंक उसके लिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और काम से रिलेटेड बातें मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जैसे अभी तो ज़्यादातर आपका रियल लाइफ क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ा होगा, रियल लाइफ आज डबल रियल लाइफ का क्रिटिसिज्म, वो मुझे आप क्या अंतर देखती हैं? रियल लाइफ तो क्रिटिसिज्म मैं देखती भी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है, वो अपने ओपिनियन सबके होते हैं या फिर अपना जजमेंट होता है जो, अनलेस समवन नोज़ मी देन आई माइट एक्सेप्ट कि उसका एक पॉइंट वैलिड होगा, बट जब मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है, तो हाउ कैन यू हैव अ ओपिनियन अबाउट मी? सो वो सब चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती है, मैं सोचती भी नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान सिर्फ काम पे रखती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मैं काम करने आई हूँ एंड आई एम मोर देन फॉर्चुनेट कि मुझे काम करने को मिला, जो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है। तो अभी मैं उस पॉइंट में अपनी ये लाइफ के बारे में सोच के कि लोग क्या सोच रहे हैं,
आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय फोकस. रियल लाइफ में अभी तक क्रिटिसिज्म देखा नहीं है, सो वंस आई गेट देयर देन आई विल नो हाउ आई एम गोना फील, बिकॉज आई कांट टेल यू राइट नाउ कि मैं क्या फील करूँगी. आई माइट से राइट नाउ आई वॉन्ट डजेंट मैटर टू मी और वट एवर, बट मे बी जब पिक्चर आएगी क्या पता मुझे फ़र्क पड़े. चलिए पिक्चर तो आएगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा धोनी से आप कब मिलेंगी, और जब आप धोनी से मिलेंगी तो आपका कैरेक्टर किस तरह होगा, मतलब आई मीन आप रियल लाइफ में रहेंगी या रियल लाइफ में रहेंगी आप? आई थिंक जो भी कास्टिंग हुई है कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ से इंस्पायर था. इवन कियारा को आप देखो तो कहीं ना कहीं वो साक्षी आपको उसमें दिखेगी, या फिर आप सुशांत को देखो तो उसमें कहीं ना कहीं धोनी दिखेंगे. तो मे भी शायद वो प्रियंका उनको कहीं मुझे मेरे अंदर दिख जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपना भी एक पिंच ऐड किया है कैरेक्टर में, जो आपको करना पड़ता है क्योंकि आप इतना टेक्निकल नहीं जा सकते हो. समटाइम्स यू हैव टू ऐड योर थिंग टू योर कैरेक्टर, सो इट बिकम्स मोर रियल. पता नहीं कब मिल रही हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना मीट हिम, but I'm really looking forward. I want to ask him if he liked the film, if I was like Priyanka, Okay, lastly I want to know about your upcoming project. आप एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर रही हो, उनके बारे में बताइए. कुंफी योगा नाम है पिक्चर का. It's an action comedy and I can't talk about my character right now because it's too early. एक बार अगर कुछ announcement होगा या trailer आएगा then I'll be more open to talk about it. Yeah, so it's a very nice way. काफ़ी अच्छे से इंडिया और चाइना का रिलेशन दिखा रखा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म फॉर द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया को एक गरीब देश, पॉवर्टी, ये वो स्लम्स दिखाते हैं. इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरती से इंडिया को दिखा रखा है एंड कल्चर को दिखा रखा है, हिस्ट्री को दिखा रखा है. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन अ वेरी नाइस वे. आपको लगता है कि इस फिल्म के जरिए इंडिया और चाइना के बीच में जो दरार रहती है, पॉलिटिकल हो या फिर नॉलेज बहुत मिलेगी. दरार मुझे नहीं पता, वो तो इंसानों के अंदर है, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है. आई थिंक इट्स अ पर्सनल थिंग. मुझे चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट नो ये दरार कहाँ से आती है, किसको किससे प्रॉब्लम होता है. दे लव इंडिया. सम गाय टोल्ड मी दैट इंडियंस आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल इन द वर्ल्ड. Imagine if from China, and if they are saying that, I don't know who has the problem. So there's something wrong going in between. But I hope through the film we can express it in a way, to spread love and unity and diversity. So yeah. चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी धोनी सुपर हिट ही ना हो, ब्लॉकबस्टर हिट हो. Thank you. और आपको धोनी से मिलेगा मौका. जी, thank you so much. Thank you.